بڑی اچھی بات ہے اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں کسی کے گھر تو عموماً ڈائننگ ٹیبل پر یا ویسے بھی ڈائننگ ٹیبل سے الگ بھی دیوار پر لکھا ہوتا ہے جیسس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دس ہوم. خداوند یسوع مسیح اس گھر کا سربراہ ہے. اور یہ بڑی بابرکت بات ہے جب یسوع ہمارے خاندانوں کا، ہمارے گھروں کا سربراہ ہو. اگرچہ دنیاوی طور پر باپ سربراہ ہے تو بھی یسوع کو ہم اپنے گھر کا سربراہ کے طور پر دیکھتے ہیں. یاد رکھیے، لکھ تو لیتے ہیں ہم، لیکن جب وہ سربراہ ہے، وہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے اس کھانے پر، جو اس ٹیبل پر ہم سرو کرتے ہیں، کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کھانے پر ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے کھانے کو، ہمارے کھانے کے طریقے سلیقے کو، ہمارے گھر کو. جب ہم نے گھر میں لگا رکھا ہے، ڈرائنگ روم میں یا کسی جگہ پر، کہ وہ سربراہ آنا جانا، ہمارا چال چلن، ہمارا بیٹھنا، اور وہ جو وہاں بیٹھ کر ہم دوسروں کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ ایسا سربراہ ہے جو شاید فوری طور پر آپ کو ڈانٹ نہیں دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ضرور ہے. اور وہ وقت آئے گا کہ جب وہ آپ کو مخاطب کر کے کہے گا، میں اس وقت تیرے ساتھ موجود تھا جب تو یہ کام کر رہا تھا، یہ کام کر رہی تھی. میں تیرے گھر میں ہونے والے ہر کام کا، ہر وہاں پر ہونے والی تقریب کا، ہر وہاں ہونے والی تقریب کا میں گواہ ہوں، کیونکہ میں سربراہ کے طور پر وہاں پر موجود تھا. اور یسوع اگرچہ ہماری ہر بات چیت کے کرنے سے پہلے جانتا ہے، ہمارے دلوں کے خیال اس پہ واضح ہیں، تو بھی جب ہم نے اسے اپنے گھر کا سربراہ بنایا ہے، یاد رکھیے کہ وہ سربراہ کی حیثیت میں وہاں موجود ہے. اگر وہ برکت آپ کو مل رہی ہے جس کے آپ مستحق ہیں، تو یاد رکھیے یسوع یہ خدا ہے، یہ سربراہ ہے، جیسس کرائسٹ ہیڈ کے طور پر آپ کو برکت دے رہا ہے. اور اگر برکت نہیں مل رہی، فکر کا مقام ہے کہ سربراہ دیکھ رہا ہے، ہمارے کام شاید اسے پسند نہیں. اس لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سربراہ کے طور پر. یہ جو حوالہ آج ہم نے انجیل مقدس سے سنا ہے، لوکا کی انجیل سے 14ویں باب سے، ایک فریسی سردار ہے، نامعلوم ہے، اس کا نام ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ نامعلوم فریسی سردار جو ہے، اس کے گھر، سرداروں میں سے کسی کے گھر یسوع کے کھانے کی دعوت ہے. اس کو بلایا ہے کہ آؤ ہمارے گھر، لیکن یہ دن سبت کا ہے اور وہ ہمیشہ کوئی کام بھی بلا مطلب، بلا جواز نہیں کرتے تھے. ان کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی انٹینشن رہتی تھی. مجھے حالیہ دنوں میں
एक फैमिली का, एक खानदान का, बल्कि एक बड़े इज्जतदार नाम का इंटेंशन पता चली। अगरचे बड़े अच्छा ताल्लुकात है, बड़े अच्छे रवैये हैं, लेकिन इंटेंशंस कोई और है, इंटेंशंस गलत है। वो तकरीबकारी उनके दिलो दिमाग में हर बात के लिए मौजूद रहती है। अगरचे उन्होंने बुलाया है, यीशु को दावत दी है, खाने पर मदऊ किया है मेहमान के तौर पर, लेकिन ताक में कलाम ने, लूका ने बड़े खास अंदाज में लिखा है, लेकिन वो ताक में रहे। यीशु के हर बात को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या करता है, क्या करेगा, क्योंकि ये दिन सबत का दिन है। और ये हो नहीं सकता कि यीशु के सामने कोई बीमार आ जाए, कोई तकलीफ में हो, कोई मुश्किल में हो, वो यीशु के घर में आ जाए, यीशु के सामने आ जाए और यीशु उससे रहम और तरस की निगाह से ना देखे, ये मुमकिन नहीं है। और वो भी जानते थे। और जब हम इस पर ज्यादा गौर करते हैं, जब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो लगता ये है कि प्री प्लान्ड उन्होंने एक जलंधर के मर्ज का मरीज वहां पर बैठा रखा है, ड्रॉप्सी। ये ड्रॉप्सी डिजीज है। ये वेन्स में जब पानी हो जाए, आप जानते हैं, फिर स्वेलिंग हो जाती है और बड़ी दर्द होती है। जलंधर का मर्ज, क्योंकि लूका तबीब है और वो किसी न किसी बीमारी का नाम लिखकर बताता है कि किस किस्म की बीमारी है। वो कह सकता था कि बीमार को शिफा यीशु ने, लेकिन उसने खास तौर पर नाम, और ये डॉक्टर की एक खास निशानी है, क्योंकि लूका डॉक्टर है, वो बीमारी का जिक्र भी करता है। और ये मरीज या तो यीशु के सामने आ गया है, बैठा है यीशु के जाने से पहले वहां पर, या फिर उन्होंने प्लांट कर दिया है। बहुत से लोग हैं आज भी, कलीसियाओं में भी, खानदानों में भी, जिनकी इंटेंशंस कुछ और है और वो ऐसे प्लांट कर देते हैं कि देखें क्या होता है, क्या करते हैं। उस वक्त तो यीशु को और आज यीशु के खादमों को देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन यीशु उनके इरादों से भी वाकिफ था, उनके कामों से भी वाकिफ था, उनके मंसूबों से भी आगाह था। और आज खुदा का रूह वो सारे मंसूबे, वो सारी इंटेंशन जो लोगों की हैं चर्च के खिलाफ, खादमों के, वो उन पर जाहिर कर देता है और वो महफूज रखता है, बचाता है। रूह कुदस के जरिए से हमारा ईमान वो उन्हें कामयाब नहीं होने देता। लेकिन उन्होंने उस जंदर के मर्ज के मरीज को वहां पर रखा है और उसकी ताक में रहे कि वो क्या करता है। वैसे तो यीशु के हमेशा वो पीछे लगे रहे, देखते रहे, इल्जाम लगाने का मौका ढूंढते रहे, लेकिन आज खास तौर पर, और यीशु ने वही किया है, क्योंकि लोग यीशु का कलाम सुनने के लिए आया करते थे यीशु के पीछे। लेकिन ये याद रखिए कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर फरीसी हैं, बहुत से फरीसी, और उन्होंने अपने ही लोगों को बुलाया है। फरीसी है, उन्होंने अपने ही लोगों को वहां पर जमा कर रखा है। हो सकता है दूसरे लोग भी उनके साथ आ गए हों, लेकिन ये फरीसियों का इकट्ठ है, क्योंकि सरदार का घर है, फरीसी सरदारों में से एक था, और वो वहां पर बैठे हैं और वो ताक में हैं। लोग उसका कलाम सुनने के लिए आए हैं। यीशु की खूबसूरती ये है,
यीशु का खासा ये है कि वो अपने काम में वो कलाम बयान कर देता है, अपने काम के जरिए कलाम बयान करता है, और वो कलाम हाजरीन पर उसका इतलाक हो जाता है। वो ऐसा काम करता है कि उससे कलाम जाहिर होता है, और वो कलाम उन लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, उन पर इतलाक हो जाता है, एप्लीकेशन उसकी उस पर होती है, और वो उनको ग्राम गुजरती है। बाज़ लोग एप्लीकेशन से कहते हैं मैनू कीता है, ये पादरी साहब ने मैनू ये मुखातब कीता है, मैनू इतलाक मेरे ते कीता है। खुदा का कलाम खुद इल्जाम देता है दिलों में, वो आपके दिल में मरूद इल्जाम ठहराता है, पादरी नहीं, कलाम। और यीशु वो काम कर देता था, और उसने वो काम किया है। अजीजों, उसने उस मरीज को जो बैठा था उसको उसने शिफा बख्शी, लेकिन उससे पहले उसने उनकी जो इरादे हैं, जो उनकी इंटेंशन थी इल्जाम लगाने की, तनकीद करने की, यीशु ने उनको मुखातिब किया है, एक सवाल उनसे किया है। क्योंकि सबत का दिन है और वो इल्जाम लगाने की तलाश में है। यीशु की आदत से वाकिफ है, यीशु शिफा देगा, और जब शिफा देगा हम कहेंगे कि सबत के दिन रवा नहीं है। यीशु ने उनसे सवाल किया है, पहला सवाल, दो सवाल यीशु ने उनसे किए। पहला सवाल यीशु ने ये किया है कि क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं। और फिर यीशु ने उसको अपने पास बुलाया है, या यीशु ने उसे हाथ लगाकर छुआ है और शिफा बख्श दी। इस सारे अमल में तीन खास बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि यीशु जब काम करता है कोई, उसके जरिए से कलाम कर देता है कोई, तो उसके अंदर से एप्लीकेशन उन लोगों पर होती है। यीशु ने तीन बड़ी खामियां उनके दरमियान देखी, और आज यीशु ने तीन खामियों को उन पर जाहिर करता है। पहली खामी जो उनके किरदार में, उनकी जिंदगी में यीशु ने देखी, वो ये ही कि वो इल्जाम लगाने के लिए मुस्तैद रहते थे, वो तनकीद करने के लिए बेचैन और बेकरार रहते थे, अगरचे यीशु के पीछे पीछे, लेकिन तनकीद लगाने के लिए, अगरचे यीशु के साथ साथ, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए, और वो ताक में। और यही उनकी पहली खामी है जिसकी तरफ यीशु इशारा करता है। यीशु जानता था कि वो ताक में हैं और वो इल्जाम लगाने वाले हैं, इसलिए यीशु ने उन्हीं से पूछ लिया है कि सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं। और वो जानते हैं यीशु के सवालों को, यीशु के हिकमत के कलाम को वो जानते हैं। अगर कुछ कहेंगे तो फंस जाएंगे, और बेहतर ये है कि चुप रहें। और लिखा है कि वो उसका सवाल सुनने के बाद चुप रहे, कोई बात नहीं की उन्होंने, वो चुप रहे, चुप रह गए। ये यीशु ने क्या कर लिया है। ये दावत ही शायद उन्होंने इसलिए की थी कि वो इल्जाम लगाएंगे यीशु पर। उसको बिठाया इसीलिए था मरीज को कि यीशु पर इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि सबत का दिन है, और यीशु उनके तमाम इरादों से वाकिफ है, और यीशु ने उनकी चाल समझ ली है। अगर आप अनाजील का मुतालिया करें तो सबत के दिन को यीशु ने जानबूझ के, उनकी जो रवायत है
यीशु ने जानबूझ के उसको तोड़ा है। गलत सोच उनकी, गलत तालीम उनकी, यीशु उसकी निशानदेही करने के लिए उसे तोड़ता है। उनका ये कहना था कि सबत के दिन कोई काम भी करना जायज नहीं, रवा नहीं, इसे कोई काम ना करें, बस इबादत करे और बैठ जाए घर। यीशु उनकी गलत फहमी को पहले भी दूर कर चुका। अगर आप देखना चाहे 7 मर्तबा मैंने इसमें देखा है, 7 मर्तबा यीशु ने सबत के मौके पर उनकी रवायत को गलत किया है। लूका की इंजील के 4 बाब की 32 से 37 आयत में बदरू को निकालता है। सबत का दिन है। 4 बाब की 38वीं आयत में तप को उतारता है, वो सबत का दिन है। और फिर 6 बाब की 1 से 15वीं आयत में उसके शागिर्द बालें तोड़ते हैं और वो खाते हैं। सबत का दिन है, यीशु ने मना नहीं करता। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 1 से 9वीं आयत में यीशु एक माजूर को शिफा देता है। 6 बाब की 6 से 10वीं आयत में एक फालज के मरीज को यीशु शिफा देता है। और इसी तरह 13वें बाब की 10वीं आयत में यीशु बदरू के जरिए से जो माजूर किया हुआ था उसको शिफा देता है। सबत का दिन है। 7 मर्तबा यीशु पहले उन्हें, लेकिन वो बाजिद हैं और अब भी वो इल्जाम लगाने की, और यीशु ने उनसे कहा क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं, और वो चुप है। यीशु ने उसको छुआ है और शिफा दे दी है। और फिर वो जो ईमान उनका था उसकी बाइबली कोई बुनियाद उनके पास नहीं थी। ये रवायतें उन्होंने कायम कर रखी थी, बुजुर्गों की रवायतें घड़ रखी थी उन्होंने, इसलिए वो उन रवायतों को तोड़ता है। उनके एतकाद जो उन्होंने बना रखे थे, जिसे वो ईमान का दर्जा बाद में, वो उनको इनकी इस्लाह करता है। और ये इस्लाह का काम यीशु से हमने सीख लिया है। जब भी कोई गलत तालीम हम देखते हैं, हम उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं, या कम से कम अपने लोगों को तो उससे आगाह करते हैं कि इनसे बच कर रहो, इनसे होशियार रहो, ये तालीम गलत है, ये गलत तालीम लेकर आए हैं। और आज बहुत से झूठे उस्ताद, झूठे नबी बहुत सी बिदतें लेकर आ गए हैं। ये वही रवायतों की एक मिसाल है जो इन्होंने घड़ ली है, जो इन्होंने कलाम को बदल दिया है। लेकिन यीशु हमें यह सिखाता है कि हर उस तालीम को जिसकी बुनियाद अगर बाइबल में नहीं है तो उसे रद्द करना है, उसे तोड़ना है, उसे ठुकराना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाना है अगर उसकी बाइबल में कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। और बहुत सी बिदतें हैं जो बाइबल से बाहर लोगों ने बना रखी, और आज भी वो उस पर मजिद है, और आज भी हम उनकी इस्लाह करने के लिए मौजूद हैं। हम उन्हें बताते हैं कि लोगों को इकट्ठा ना करो लालच देकर कि रोजगार के लिए कुरानदाजी की जाएगी, कारोबार के लिए, और फिर उसमें से एक पर्ची निकाली जाएगी, आपको कारोबार, और लोग बेरोजगार हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे गोरे का कलाम सुनने के लिए, शिफा के लिए और बातों के लिए आए हैं। और पीछे लालच क्या है, ये तो पाकिस्तान लगाकर बैठे हैं, लोगों को लालच देते हैं कि आ जाओ, और ऐसे इकट्ठ इनकी इस्लाह करना जरूरी है। थोड़े लोग आ जाएं कलाम सुनने के लिए काफी है, छोटी कन्वेंशन हो जाए काफी है। 2-3 हजार 4,000 लोग दिखाना गोरे को इंप्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है। तो इसलिए उनकी इस्लाह, उनकी रवायतें, जो उनकी बिद्दत की तालीम है, जो वो घड़ते हैं इसके अंदर,
कौन सी इबादत है जिसमें कुरानदाजी करके जीतो पाकिस्तान की तरह इनाम दिए जाए। और ये वो इबादतें हैं, इनकी इस्लाह जरूरी है। हम दुआ करें कि खुदावंद इनको इस्लाह की तरफ लाए। यीशु ने उनकी इस्लाह की है और उनको पूछा है, क्या इसकी बाइबल में कोई बुनियाद मौजूद है? शिफा देना रवा है या नहीं? कहां से तुमने ये निकाल ली है बात कि सबत के दिन शिफा देना? और यीशु ने दूसरा सवाल उनसे किया है। वो चुप हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। और यीशु ने दूसरा सवाल उनसे किया है कि क्या अगर तुम्हारा गधा या बैल सबत के दिन कुएं में गिर जाए तो तुम में कौन है जो उसे बाहर नहीं निकालेगा? या कह दे कि सबत का दिन है, हमने कोई काम नहीं करना, इसको मरने दें, कुएं में गिर गया तो गिर गया, बस पड़ा रहने दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अपनी जरूरत के लिए, अपनी फायदे के लिए वो हर बात को तोड़ देते थे, लेकिन दूसरों को रोकते थे कि ये ना करो। और अपने फायदे के लिए वो जानवर को निकाल लिया करते थे। और यीशु जानता था तुम्हें कौन है, और वो चुप रहते हैं क्योंकि वो फौरन, और जानवर की फिक्र यीशु यही उन पर जाहिर कर रहा था कि तुम जानवर की फिक्र करते हो लेकिन इंसान की फिक्र तुम्हें नहीं है। इंसान जिसे खुदा ने अपनी शरीर पर बनाया है, जिसे वो प्यार करता है, जिसके लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, जिसके गुनाहों का कफारा उसने अदा कर दिया है, उसे तकलीफ में रहने दो, इसलिए कि सबत का दिन है। और ये यीशु ने उनकी गलत फहमी को, गलत तालीम को, जो उनके दरमियान रवाज पा चुकी थी, उसको यीशु ने दूर किया, ठीक किया है। और वो जानते थे कि यीशु ठीक कह रहा है। हम दूसरों पर तो इल्जाम लगाते हैं कि ये सबत के दिन काम कर रहे हैं, लेकिन खुद वही काम सबत के दिन हम करते हैं। यीशु ने यही उनसे पूछा है कि अपनी मर्जी से जो तुम तालीम बना लेते हो वो ठीक है, बाइबल में खुदा के हुक्म में उसकी कहां पर बुनियाद मौजूद है? उनके पास कोई बुनियाद नहीं। जानवर की इज्जत, जानवर की कदर, क्योंकि उनका नुकसान होने वाला है। अगर जानवर मर जाए उनका नुकसान है, इसलिए वो उसकी फिक्र करते हैं। दूसरी जो बात यीशु ने उनकी जिंदगी में देखी है, 7 से 10वीं आयत में, वो तकब्बुर वाली जिंदगी है उनकी, गुरूर वाली जिंदगी है उनकी। और वो 7 से 10वीं आयत में देखता है कि किस तरह लोग सदर नशीनी या नुमाया जगह पसंद करते हैं कि वहां पर बैठे लोग देखें। और यीशु ने उसकी इस गलत फहमी को भी, उनके इस किरदार को भी यीशु ने ठीक किया है। इस खामी को भी यीशु ने दूर करने की कोशिश की है कि तुम्हें निचली जगह पर बैठना चाहिए ताकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुलाए ऊपर, तुम्हारी इज्जत होगी। पहले से ना बैठ जाओ, तुम्हें उठा दिया जाएगा कि यहाँ पर किसी और को बैठना है, फिर तुम्हारी। और यीशु ने उनकी इस खामी को भी देख लिया कि कैसे वो खुद नुमाई, खुद की इज्जत वो चाहते थे, अपने आप को बड़ा बनाते थे दूसरों के लिए। और फिर बाजुकात उनको छोटा बनना भी पड़ता था। जब मेजबान आकर कह दे कि ये जगह छोड़ दे, किसी और के लिए है, यीशु उनको सिखा रहा है कि अपने आप को छोटा बनाएं तो बड़ा किया जाएगा। इज्जत खुदा की तरफ से मिलती है, खुदा सरबुलंदी देता है खुद से कोशिश करके। और यहां पर यही रवाज है दुनिया में कि दुनिया खुद को बड़ा बनाती है। यीशु उनको जो तालीम दे रहा है दुनिया के मुताबिक ये तालीम नहीं है।
दुनिया इसलिए उस तालीम को रद्द करती, उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि यीशु कहता है अपने आप को छोटा बनाओ, दुनिया कहती है अपने आप को बड़ा बनाओ और तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। इसलिए आज हर कोई बड़ा बनने की कोशिश में है। कोई भी यीशु के उस आवाज पर कान नहीं लगाता जो यीशु कह रहा है अपने आप को छोटा बनाओ तो तुम्हें बड़ा किया जाएगा। हर कोई अपने आप को बड़ा बना रहा है, लेकिन यीशु ने यह असूल दिया है हमें कि हम अपने आप को छोटा बनाए। यही बात मिसाल की किताब में भी हमें मिलती है। 25वें बाब में 6ठी आयत में, बादशाह के हुजूर अपनी बड़ाई ना करना और बड़े आदमियों की जगह खड़ा ना होना, क्योंकि ये बेहतर है कि हाकिम के रूबरू जिसको तेरी आंखों ने देखा है तुझसे कहा जाए आगे बढ़कर बैठ, ना कि तुझे पीछे हटा दिया जाए। ये असूल यीशु हमें सिखा रहा है। और इंसाल की किताब के ही 16वें बाब में 18वीं आयत में अगर आप पढ़े तो लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुदबीनी है। आदमी अपने आप को जब देखता है उसका जवाल है। जब वो दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, ये उसके इज्जत की और मिराज का बायस बनती है। तकब्बुर अगर करेंगे उसके बाद हलाकत है। इसलिए यीशु उस तकब्बर और गुरूर को जो वो करते थे उसकी इस्लाह करना चाहता है। इंसाल की किताब के 25वें बाब की 27वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, बहुत शहद खाना अच्छा नहीं और अपनी बुजुर्गी का तालब होना जेबा नहीं। अपने आप को बड़ा बनाना कलाम बार बार हमें सिखाता है और ये बात दुनिया को पसंद नहीं, इसीलिए दुनिया छोटा बनना नहीं चाहती है। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह की तालीम को सुनते उस पर अमल करते हैं, वो अपने आप को छोटा बनाते हैं। अगर दुनिया जाने, बाज का लोग कहते हैं ये छोटा बना रहे अपने आप को, ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है। बहुत मौकों पर हमें सुनने को मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों, यही यीशु ने असूल दिया है। अगर अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो वो छोटे खुदा की नजर में। तीसरी जो खामी उनकी जिंदगी में यीशु जिसकी तरफ निशानदेही करता है वो है कि वो सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी गुजारते हैं। खुद गर्जी की जिंदगी उनकी है और वो दूसरे की फिक्र नहीं करते हैं। अगला हिस्सा जिसकी तलावत हमने नहीं की, अगर आप पढ़ें 12वीं और 13वीं आयत, तो वो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुलाते थे दावत पर, और पीछे उसके जो राज था वो ये था कि ये भी हमें बुलाएंगे, हम इनके यहां भी दावत पर जाएंगे और बदला हो जाएगा। इसीलिए हम उनको बुलाएं, वो हमें बुलाएं, एक दूसरे को बदला हम दे सकते हैं। लेकिन यीशु उनकी इस खुदगर्जी से उनको बाहर लाता है और उनको कहता है कि जब तुम दावत दो तो उनको बुलाओ जो तुम्हें बदला नहीं दे सकते, जो तुम्हारा उस तरह से शायद बदला नहीं चुका सकते, उनको लाओ। आसमान की बादशाही की तमसील जो हमें मत्ती की इंजील में मिलती है, यीशु ने कहा कि वो जो बुलाए गए थे जब वो नहीं आए, यीशु ने कहा कि जाओ, और बादशाह ने कहा सड़कों पर से, खेत के किनारों पर से, बाजारों में से जो लोग भी मिलते हैं उनको ले आओ। और वो बदला नहीं दे सकते, लेकिन ये उनकी खुदगर्जी है। वो ये देखते थे कि हम उनको बुलाएंगे सारे दोस्तों को इकट्ठा करके, ये सिर्फ बुरी बात नहीं है। यीशु ये भी नहीं कहता कि ये बुरी बात है, लेकिन अगर हमारा पीछे जो नजरिया ये है कि ये हमें बुला रहे हैं, हम भी इनको बुलाएंगे, बदला हो जाएगा, तो ये बात गलत है।
ان کو بلانا ہے جو بدلہ نہیں دے سکتے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی فکر کرنی ہے جو ہمیں بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ چرچ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حلقہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ انہیں کو بلاتے ہیں، انہیں سے سلام دعا لیتے ہیں جو ان سے سلام دعا لیں، اور عزت کی بات بنتی ہے۔ ان سے بات بھی نہیں کرتے جو ان کی نظر میں چھوٹے ہیں، غریب ہیں، ان کو بدلہ نہیں دے سکتے۔ یسوع اس غلط فہمی کو، اس خامی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم چھوٹوں کی فکر کریں، یسوع نے بار بار تعلیم دی ہے، جو چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کرے گا وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کو شامل، سرکل کو چھوڑیں۔ یہ سرکل آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں، یسوع کا حکم، اس کی پیروی آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گی۔ ایک آیت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، مقدس پالوس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ دیکھیے یہ کیا کہتی ہے، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروی میں لگے رہو۔ جن کو نہیں جانتے، جو بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، جو صرف شاید آپ کو تھینک یو کہہ سکتے ہیں، یا شاید بعض اوقات تھینک یو بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی فکر کریں۔ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ تنقید کرنے والی، الزام لگانے والی، طاق میں رہنے والی، یا تکبر اور غرور کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یسوع ہمیں اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایسی زندگی عطا کرے کہ ہم صرف اس کے حکموں کو سنیں، ان کی پیروی کریں، دنیا کے مشابہ نہ ہو، دنیا کے ہم شکل نہ بنے۔ دنیا کیا کہتی ہے، خداوند یسوع کیا کہتا ہے، میرے لیے اہم یہ ہونا چاہیے، یسوع کیا کہتا ہے۔ تکبر کی زندگی یا حلیمی اور فروختی کی زندگی، الزام لگانے والی زندگی، تنقید والی زندگی، یا مدد کرنے والی، حوصلہ افزائی والی زندگی، مددگار زندگی، خود غرضی کی زندگی، یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی زندگی۔ اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یسوع یہی چاہتا اور سکھاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کریں۔